Stress, pollution and lifestyle changes have only added up to the challenges. And the most common challenges in today's world is hair related problems. हेयर PRP, GFC कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आजकल हमें काफ़ी सुनने में आ रही है एंड आर एडवाइज्ड दैट दे हैव एक्चुअल रिजल्ट इन हेयर रीग्रोथ, हेयर रिजुविनेशन एंड ब्रिंगिंग बैक आवर ओन कॉन्फिडेंस। तो आज हम हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड हेयर PRP एंड GFC के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में एंड वी हैव द एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री, नॉर्थ इंडियाज बिगेस्ट एस्थेटिक वेलनेस क्लिनिक से एफिलिएटेड हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जागृति गांधी। तो आज जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। So hello doctor. Hello, thanks for having me here. So doctor, knowing the right treatment can really help us to rejuvenate our hair. And I would like to know कि PRP और GFC में सबसे ज़्यादा ये डाउट होता है कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है and one is the better. So PRP or platelet rich plasma and GFC or growth factor concentrate that we also called as advanced PRP. So it's basically an advanced version of PRP. So these are two different modalities how we can help rejuvenate your hair. So along with the topical treatments, that is serums and all, and along with the oral supplementation, so these are a game changer in getting in hair restoration or hair rejuvenation. So PRP is nothing but platelet rich plasma, also not a complicated procedure. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि complicated है, but it is nothing but your own blood has growth factors. So growth factors अभी तक blood में थे but वो use नहीं हो पाए थे. So with the help of us processing your taking blood and then processing it, we are going to extract the growth factors out of it. So those growth factors that help in rejuvenation of your hair, of your scalp and also of the face, वो different होता है. So उसके case में PRP is helping. हम वो growth serums, growth factors extract करते हैं और वो हम फिर inject करते हैं. So this is all about PRP. Then comes advanced PRP. Advanced PRP is an advanced version of that. We also call it as GFC or the growth factor concentrate. So उसमें और basic PRP में क्या difference है? Advanced PRP is nothing but जो vials आती हैं जिसमें हम blood collect करते हैं उसमें already growth factor concentrate serum आता है. वो growth factor concentrate serum plus आपके body का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से जो बनता है, जो ग्रोथ फैक्टर्स सिरम्स बनता है, उनका एक एक्यूमुलेशन करके उसको इंजेक्ट किया जाता है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट एंड हाउ इट इज़ बेटर. सो मोर और लेस 4 सेशंस ऑफ GFC or the advanced PRP is equivalent to 6 sessions of PRP. Okay. Getting any of them is obviously something that I would recommend if you are someone who's facing hair thinning, who's facing hair fall issues, who's facing hairline recession, overall rejuvenation of your hair. So दोनों ही procedures equally अच्छे हैं, but definitely advanced PRP is much more better than getting PRP done. तो जब बालों पे बात आती है इवन अ हेयर स्पा इज रियली एक्सपेंसिव, तो अगर हम कॉस्टिंग की बात करें ऑफ दीज टू ट्रीटमेंट्स, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स? So PRP is somewhere the cost starts from somewhere 4,000 5,000. मार्केट में बहुत लोग अब रैंडम सैलून्स पे भी आजकल PRP हो रहा है. Though they are not authorized for it, they are not the technicians properly guided for that, and they don't have any studies or anything, not anything knowledge backed up for that. So 3,000 4,000 से start होके anywhere till 10,000 12,000 we have these sessions. So PRP की कॉस्टिंग कुछ ऐसी रहती है एंड GFC बिकॉज उसमें ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट अलग रहता है वायल्स में, सो वो वायल्स की कॉस्टिंग अलग होती है. सो दैट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर बिटवीन 4K 5K टिल मैक्सिमम 15K 16K. ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ इट इज. तो PRP और GFC जैसी ट्रीटमेंट से हम कितनी, अगर मैं टाइमलाइन समझने की कोशिश करूं तो कितनी जल्दी एक पेशेंट रिजल्ट देख सकते हैं? So nothing is like single sitting में, in especially in derma, in skin and hair and nails, anything. So it should the sittings are there is a gap of at least 1.5 months to be kept between the sittings. बहुत लोग हर हफ्ते में भी कर रहे हैं, but that is a wrong practice because वो process जो है आपका inflammatory cycle उसको 1-1.5 महीना लगता है.
प्रॉपर फेज में आने में, ग्रोथ फेज में आने में. सो वी आर जस्ट इंक्रीजिंग योर ग्रोथ फेज, द ग्रोथ फेज ऑफ योर हेयर. सो सेशंस आर टू बी रिपीटेड आफ्टर every 1 to 1.5 months, and 4 to 6 sessions is good with maintenance obviously. So initially हम बोलते हैं 4 to 6 sessions for like 4 to 6 months, and then उसके बाद you should go for maintenance sessions. जैसे आप डाइट करते हो, जैसे आप वर्कआउट करते हो, तो आपको मेंटेनेंस पे जाना होता है. सिमिलरली फॉर दीज केसेज एज वेल, आप 4 to 6 सेशंस लो कॉन्टिन्यूसली, लाइक 1.5 मंथ के गैप पे, एंड देन इवेंचुअली यू कैन शिफ्ट टू लाइक 3 मंथ्स में एक सेशन, 2 मंथ्स में एक सेशन, जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट. एंड ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट तो यूज़ कर ही रहे हो, आप सिरम्स तो लगा ही रहे हो इफ़ यू समवन हुज हैविंग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस. सो उस केस में आप वो तो साथ में कर ही रहे हैं, साथ में आपकी मेंटेनेंस PRP और GFCs चल सकती है. सो दिस इज हाउ इट इज. तो हेयर फॉल तो इन माई नॉलेज, मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट इन माई नॉलेज इज़ वेरी नेचुरल कि मतलब ऐसा होता है कि हेयर फॉल हो रहा है तो PRP GFC का. कुछ लोगों को बहुत ही मिथ है या फिर डर बैठ गया अंदर कि थोड़ा सा भी वो हेयर फॉल है तो क्या शायद मुझे PRP की ज़रूरत है, क्या मुझे एलोपेशिया तो नहीं हो रहा है. तो मैं ये समझना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द साइंस कि हमें PRP करवाना चाहिए, या क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है PRP. So with social media being so trendy and everything on social media, people have started exactly as you said, people have started having these kinds of fears कि they are having, एक वर्ड पता चल गया सबको, एलोपेशिया. अब वो एलोपेशिया हर चीज़ को, हर किसी को है. मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे एलोपेशिया है. मुझे थिनिंग हो रही है, मुझे एलोपेशिया है. मुझे मेरा पूरा एक पैच बन रहा है जो कि एक्चुअली एलोपेशिया एरियाटा होता है, और लोग कहते हैं मुझे एलोपेशिया है. एलोपेशिया बहुत तरीके का होता है. सो सम आर ओनली मेडिकल ग्रेड, ठीक है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ हेयर फॉल. सो इट्स एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इट इज एलोपेशिया एरियाटा, इट इज फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, इट्स जस्ट टीलोजेन effluvium, chronic or acute. So all of these hair fall issues or hair thinning or hair concerns are different and to be treated differently. So alopecia areata जो होता है, that is just treated by medical grade things. So उसमें कोई treatment procedure हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना होता. PRP doesn't help. उसमें we take help of the topical steroids, we take help of the topical tinctures. वो उस केस में handle हो जाता है. Also we sometimes you have to use injectable steroids for that as well. Next comes to female pattern hair loss or the male pattern hair loss, जिसमें genetic, hormonal, stress, oxidative stress, all of these factors are responsible. सो उस केस में हमें PRP, एडवांस्ड PRP, हेयर ट्रांसप्लांटेशन इफ़ द ग्रेड इज़ हाई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प. और समटाइम्स स्कैल्प माइक्रोब्लेडिंग और द स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन हेल्प्स. सो दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड. देन वी हैव टीलोजेन effluvium ऑफ द क्रॉनिक टीलोजेन effluvium, पोस्टपार्टम टीलोजेन effluvium. वो उस केस में होता है जहाँ पे आपके हार्मोनल कंसर्न्स नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है, बट आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मेजर स्ट्रेसर पड़ा है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है. सो दैट कैन बी एक्यूट इफ इट इज़ लाइक आप बीमार पड़े थे 3 महीने पहले, आपको उस 3 महीने के 1.5-2 महीने के बाद आपको हेयर फॉल स्टार्ट हुआ और इनिशियली बहुत ज़्यादा हो रहा है. देन क्रॉनिक टीलोजेन effluvium जब वो 3 महीने से ज़्यादा होने लगता है, एनीवेयर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 3 months to 6 months, 8 months वो रहता है. So that is a different altogether a different category of the hair fall. So उस केस में भी PRP GFC along with medical treatments of serums and of oral supplementation helps. Then there is something called as जिस केस में हमारा वेदर चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है. हाँ. देन देर इज ऑल्सो अनदर थिंग जिसमें हमारा स्कैल्प बिल्डअप की वजह से हेयर फॉल हो रहा है. सो देयर वी नीड टू ट्रीट डैंड्रफ अकॉर्डिंगली, देयर वी नीड टू ट्रीट द स्कैल्प हाइजीन अकॉर्डिंगली, एंड देन ओनली वी कैन टेक केयर ऑफ द हेयर फॉल कंसर्न्स. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर देयर. डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके के सोल्यूशंस होते हैं, बट अगेन PRP एंड GFC इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू गो टू. That is not the only thing to look forward to, and it is not the only solution for every grade of medical hair fall or the hair thinning. So that is different. And dermatologists, the experts whom you should look forward to, whom you should discuss कि अभी मुझे ये concern है तो what should I go for. You should ask all your doubts related to the PRP, GFC or whatever treatments that they're suggesting. Sometimes a lot of times is also the condition जहाँ पे आपके body में कुछ micronutrients के levels बहुत कम होते हैं. That is also another reason for your hair fall. So let your dermatologist be the guide for that. क्या
किस चीज़ में कहाँ पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, किस चीज़ पे कहाँ पे उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान देना है, किस चीज़ पे उनको PRP GFC से हेल्प करनी है, कहाँ पे PRP GFC या कुछ और ट्रीटमेंट्स काम नहीं करेंगे और वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट काम करेगा. So that is all about it. Yeah, absolutely. Dermatologist knows better how these things work. Yeah. So मैं ये पूछना चाहूँगी कि विंटर्स लाइक आपने जैसे बोला क्लाइमेट चेंजेस में डैंड्रफ हम फेस करते हैं. आजकल काफ़ी कॉमन कंसर्न बन गया है जो कि डैंड्रफ इन विंटर सीजन. सो कैन PRP ऑल्सो ट्रीट दैट या फिर हाउ टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ? So look, dandruff when we were young, when we were kids, तब ये होता था डैंड्रफ का पैटर्न अलग होता था. तब हम बोलते थे डैंड्रफ वो है जो कि यू कैन सी अ फ्यू वाइट टाइनी डॉट्स ओवर योर क्लोथ्स. सो वो उस टाइम का डैंड्रफ ऐसा होता था. बट अब अगर आप देखो तो डैंड्रफ का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है. Yeah. अब many people are like नहीं डॉक्टर हमें डैंड्रफ है नहीं. फिर then I ask does your scalp itch? Then they say yes it does. And when we scratch तो हमारे nails में कुछ डिपॉजिट हो जाता है. So they don't know that actually that is also dandruff and that is dandruff that has changed its course through the years. So dandruff का one of the major concerns is stress. Is the oxidative stress, is the environmental stress and pollution. There has been a tremendous change in the pattern of stress during times and हमारे childhood में अलग था, अभी अलग है. So dandruff is nothing but a fungal species that is residing in your scalp. So एक healthy flora होता है और एक होता है जब वो ज़्यादा हो जाता है, जब वो dandruff scalp build up करने लग गया. तो बहुत सारी कॉमन और चीज़ें हैं. जैसे हम पहले बोलते थे ऑयलिंग करना हेल्प्स विद योर डैंड्रफ. बट ऑयलिंग इज द ओनली सोल न्यूट्रिशन सोर्स ऑफ दैट फंगल स्पीशीज जो आपके डैंड्रफ में है. सो इमेजिन व्हाट यू आर डूइंग बाय पुटिंग ऑयल इफ यू हैव ऑयली स्कैल्प और इफ यू हैव डैंड्रफ इन योर स्कैल्प. यू आर नथिंग बट ब्रीडिंग एंड फीडिंग दैट फंगल स्पीशीज. सो दैट इज़ अ बहुत बड़ा इशू जो कि हमें बहुत बार फेस करना पड़ता है. टेलिंग नानीज दादीज एंड मेकिंग देम अवेयर कि ये डैमेज कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है. So this is one thing. Then stress obviously. Then other thing is many people don't frequently wash their scalp. अभी एक तो ऑलरेडी हमारा केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स एंड हीट बेस्ड ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं Yes. as compared to before. So this is also what adds to your scalp build-up. Then we are not frequently washing as our scalp demands. अब बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर 1 to 2 times a week ही तो वॉश करना चाहिए. That is what is healthy. नहीं तो आपके बाल तो और गिरने लग जाएंगे. बट नहीं, आपके बाल ऑलरेडी डैमेज्ड हैं. आपकी स्कैल्प को डिमांड है, आपकी स्कैल्प को नीड है एंड इट इज़ डिमांडिंग यू टू वॉश इट फ्रीक्वेंटली. इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग आउट फ्रीक्वेंटली, अब स्कैल्प पे बिल्डअप तो हो ही रहा है, स्वेट एक्यूमुलेशन तो हो ही रही है, वो और स्वेट की वजह से वो और ब्रीडिंग ग्राउंड दे रहा है उस फंगल को ग्रो करने के लिए. सो वॉश एज पर इट इज़ रिक्वायर्ड एज योर स्कैल्प इज डिमांडिंग. समटाइम्स वॉशिंग 4 to 5 times a week इज ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप इतना वर्कआउट कर रहे हो तो येस वाई नॉट. अगर आपकी स्कैल्प ऑयली हो रही है सो यू शुड. मेल्स के केस में तो अभी तक भी वो रोज वॉश कर ही रहे थे, कुछ हार्म थोड़ी हो रहा था. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट एंड यू शुड टेक केयर एट योर लेवल एज वेल कि जितना आपको रिक्वायर्ड है. डैंड्रफ बहुत बार आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो, खुद भी सेटल कर सकते हो अगर आप ये सब चीज़ों के लिए अवेयर हो तो. देन देयर इज़ ऑब्वियसली ट्रीटमेंट बेस्ड शैम्पूज फॉर डैंड्रफ for based on many antifungal agents, based on many steroidal agents that helps. But then your dermatologist should be recommending them कि कितनी देर के लिए. अब बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हम तो कीटोसिप यूज़ कर रहे हैं या हम तो ये एंटीफंगल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं बट हेल्प नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि आप उसको कम देर रख रहे हो, आप उसको फंगल स्पीशीज़ पे एक्ट ही नहीं करने दे रहे हो. सो आइडियली द एंटीफंगल शैम्पूज दैट you are using or you are prescribed by your dermats or any expert of yours, any physician of yours, you should be keeping it for at least 10 to 15 minutes. Then you should wash it. लोग यूज़ भी कर रहे हैं पर हेल्प भी नहीं हो रही है. वो प्रॉब्लम्स हमें भी फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि पेशेंट्स है लाइक ये तो काम ही नहीं करता. काम करता है उसको क्योंकि हम राइट टाइम के लिए नहीं रख रहे हैं, इसलिए वो काम नहीं करता हुआ लगता. या एंड देन इट्स नॉट. I have a few patients who have been using antifungal shampoo since last 2 years, last 3 years continuously. और अब वो कोई नॉर्मल शैम्पूज पे नहीं है, वो वही यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ देयर सोल शैम्पू. तो हफ्ते में 3 दिन वॉश करते हैं तो 3 दिन उसी से वॉश करते हैं. अब डिपेंडेंसी सोचो, फंगल स्पीशीज तो रेजिस्टेंट हो जाएगा ना. एंटी फंगल शैम्पू कॉन्टिन्यूसली यूज़ करी जा रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ वी टेल देम कि आपको उसको स्टॉप भी करना है, आपको उसको टेपर करना है. इवेंचुअली अभी मैं बोलूँगी मे बी लाइक अगर आपका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको बोलूँगी
कि आप उसको हफ्ते में तीन बार यूज़ करो, 2 बार अपना रेगुलर शैम्पू यूज़ करो। फिर मैं उसको बोलूँगी कि आप उसको 2 बार यूज़ करो, फिर उसके बाद आप उसको 1 बार यूज़ करो। अब आप जब आपको नीड लगती है, क्योंकि अब आपका स्कैल्प काफ़ी हेल्दी है, स्कैल्प क्वालिटी इज़ गुड, योर स्कैल्प ओवरऑल फ्लोरा इज़ गुड, सो नाउ यू ओनली रिक्वायर इट फॉर 7 to 10 days में once every 7 to 10 days, so that is how you should use it. So these are all the things. And पहले हम देखते थे कि सिर्फ विंटर्स में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, अभी ऐसा नहीं है। डैंड्रफ मेनी पीपल आर फेसिंग दीज इशूज़ ऑल द ईयर राउंड। समर्स में भी डैंड्रफ है, बट समर्स में जस्ट कम है थोड़ा, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हो गया, विंटर्स में और ज़्यादा हो गया। सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट एन इंडिविजुअल ऑल्सो कैन टेक कैन डू ऑन देयर ओन एंड फॉलो, सो दैट वो बिल्डअप ना। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जागृति, ये सब चीज़ें हमें बताने के लिए और हमारी ऑडियंस को जागरूक करने के लिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपने हेयर हेल्थ के लिए। हेयर केयर इज़ ऑल्सो अ थिंग, नॉट ओनली स्किन केयर। तो अपने बालों का ख्याल रखें, बिकॉज ये जुल्फ़े ही आपको खूबसूरत दिखाती हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो ज़रूर फॉलो कीजिए और नीडफुल को शेयर कीजिए। एनी क्वेरीज रिलेटेड टू हेयर problems, comment down below. We are open to assist you and solve your queries in our upcoming podcast. So keep following. So thank you all for listening to the podcast, and keep on liking, sharing and following it, and let us know for any hair related queries that you're having.